The Indian state or Indian nation is basically has threat within that. Hello everyone, my name is Urvashi Tiwari and I welcome you all to your very own Indo-Thai news channel. Today it's an honor to be along with one of those personalities who has played a prominent role in the world of media. A person who has worked with renowned channels like Zee News, BBC World and Sahara News. Moving on, he has also been elected 4 times as the Secretary General of Press Club of India and currently running his own YouTube channel in the name of 24/7. Thank you so much, sir, for joining us today. It's a real privilege to be standing here along with you. So, starting us with the interview, firstly, we would like to know about you in a person. कैसे start हुआ ये पूरा journey कैसे start हुआ? How did you landed up in the field of journalism? It was a very conscious decision to go into journalism, because in India, if you want to do politics or if you want to go into politics, it's very limited chance for the person who belongs to a middle class family. I was born and brought up in Aligarh Muslim University, Aligarh. My father was there, my whole family was there. उसके बाद में मुझे लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर a person like me or a Hindu there is no chance to start politics because everything was different. So I decided to do journalism, and I wanted to say something, and I want to tell the world something which I experienced in my life, in my childhood, about the Islam, Quran, Hadith and Sharia. So I decided to do journalism because that's the only way you can express your views. So I finished my studies after doing my graduation in political science, then I did my PG in journalism. And 89 I joined first newspaper in Delhi, Sunday Mail, it's a weekly newspaper. I worked with that for 3-4 years. Then I did some freelancing, then I did Sahara TV, then I did Zee TV, then I was in BBC. Then my last assignment with a channel called Aaj TV Pakistan, and I was the only Indian till date that they offered me a regular job, and I was looking after the channel in India. So I visited Pakistan. The tenure was with Pakistan is almost for 12 years. And during that period, I understand what Pakistan is, how India has been divided, why India has been divided, what are the reasons, who are the forces. So after some time, almost 2016, 2017, some people, person like Colonel R.S.N. Singh, of former Raw Director, Major General G.T. Bakshi, Sushil Pandit, they basically convinced me this is not the time to continue with the Pakistan, it's okay, you played a long inning. So they said you have to speak something about Islam and Quran because it's a very sensitive subject in India. People basically don't want to speak, they have a hesitation, they have a lot of fear also. But this Islamic jihad and Islamic terrorism is a very difficult word to express in India because we have a different kind of society. We have very double-faced society, we are very hypocrite society. So we don't want to say spade or spade. So I decided. And since 2016, I resigned from my job and I'm doing public commentary on these issues, especially in Kashmir, especially the communal politics in India. So, covering throughout the country, I'm going to Gujarat and Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan. Some people in Bangkok, they also got my speeches through the YouTube. They invited me. So last 2 days I am in your city and people are so emotional about the country, especially India. People are worried about India. People are keeping eye on what going on in India. So in this tour, today is my last day in Bangkok, and I am really happy that you given me an opportunity to express my view in a channel where large number of people is your viewer. So the whole purpose of whether it is a lecture or it is an interview is I wanted to reach every Indian. I wanted to tell every Indian, your nation is in danger. Because you have a threat inside, not outside.
That is my purpose. So, going back to the initial, like where you started, so what were the initial challenges which you faced while you were doing journalism? You opted for journalism in this country because I think it was back 30 years. And also the challenges you would like to know when you landed up in Pakistan, because I think the turmoil between both the countries were at peak. So what was the treatment from that country? Was it good? Was it bad? How was it? No, मुझे लगता है कि when I started journalism, I still find that some real editors were there during my period. But over the time, journalism, if you ask me today, I am very blunt. I am not very sober or very calculated. I say today, whole journalism in India is like a PR exercise. Everybody has their own agenda. People are queuing, and the editors are in the queue in the line in the party's office. They wanted to become a member of parliament through Raj Sabha. They want to do some chairman, some director. So somehow media is lost, and the society also like that. Otherwise people really wanted to know आप इस तरफ हैं या इस तरफ हैं. So there is no middle path. So over the time when I started, it was some good during this, especially the print media. But lately the emergence of electronic media ना, उसने लोगों के अंदर जो अब जनरेशन आ रही है वो ना तो बहुत किसी हिस्ट्री को जानती है. टेलीविज़न के अंदर लोगों को पढ़ने का भी समय कम मिलता है, और टेलीविज़न में लोग खट ऑन द स्पॉट बोलते हैं, तो भाषा का ज्ञान नहीं है. एक ही भाषा भी कोई बहुत अच्छी लोग नहीं जानते हैं, उसको मिक्सअप नहीं कर पाते हैं. उस वजह से मैं देखता हूँ कि मीडिया जो है ना, अब हिंदुस्तान के अंदर बिकम ए बिजनेस हो गया है. हज़ारों लाखों चैनल खुले हुए हैं, हज़ारों बंद हो जाते हैं, फिर कोई सरकार के भरोसे चलते हैं. तो एज सच मुझे लगता है कि आई वॉज द फॉर्चुनेट, और आवर जनरेशन वॉज फॉर्चुनेट कि हम लोगों ने कुछ अच्छे लोगों के साथ काम किया. उसकी वजह से जो बेसिक है हम लोगों का ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है. उस वजह से जब ये लगा के कहते हैं कि कंट्री को कुछ बताना है, तो I still wanted to hold my those days when I started my career. I said no, I will not do this job. After 12 years or almost 25 years after my journalism, I decided why should I carry both the things together. If I took some line, I have some opinion, then I will make my opinion. I will not go for journalism. So I resigned from the journalism, and then I'm saying something. Otherwise लोग होता यह है कि वो जर्नलिस्ट भी बने रहते हैं और ओपिनियन भी देते रहते हैं. तो आपको अगर ओपिनियन देनी है तो जर्नलिज्म को छोड़ दीजिए, फिर आप उसके बाद आइए. इसलिए शायद मैं ज़्यादा, मेरा कॉन्शियस क्लियर है कि मैं आज देश में, मेरी कोई एक लाइन है, मेरा कोई नेशनलिज्म का कोई नैरेटिव है. मैं उसे गलत समझता हूँ, सही समझता हूँ, ये तो पब्लिक तय करेगी. लेकिन मैं उस नैरेटिव को कहने के साथ साथ मैंने सोचा कि जर्नलिज्म से दूर हो जाना चाहिए. जर्नलिज्म की जो अपनी सेंसिटी है, जो हम लोगों ने देखी, उसको छोड़ देना चाहिए. अब लोग आए करें. मैं अब जर्नलिज्म में नहीं हूँ, लिहाजा शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात कह पा रहा हूँ. सो उस वक्त चैलेंजेस तो थे, लेकिन आज के मुकाबले नहीं थे. आज जर्नलिज्म जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है. तो जो सर्वाइव करने की जो सिचुएशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है. मीडिया हाउस सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और आप किसी न किसी की लाइन लेते हैं तो उससे बात बनती नहीं है. देन फिर तो वो एक PR एक्सरसाइज लगती है. लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कुछ लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं. लेकिन यह है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो मीडिया किसी ज़माने गरीब की बात करता था, पिछड़ों की बात करता था, कमज़ोरों की बात करता था, जो हैव नॉट्स थे उनकी बात करता था, आज वो गुम हो गया है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ओवर का सिचुएशन ही बदल गई है. लिहाजा मीडिया इज लाइक ए बिजनेस. सर, जैसे कि अभी अगर हम देखें कि जो वेस्टर्न न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे अगर बहुत अच्छा और बहुत ही प्रोमिनेंट कह लीजिए कि न्यूज़ चैनल है BBC. BBC इज़ वे मोर ऑर्गेनाइज्ड, वे मोर स्ट्रक्चर्ड, वे मोर एनालिटिकल है वो. तो सर, आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या है जो हमारे न्यूज़ चैनल मिसिंग है, विच कैन बी देयर टू मेक इट मोर बेटर एंड मोर प्रोफिशिएंट, एक मायने में जो एक इम्प्रूवमेंट कहा जा सकता है? सिमी, इसमें एक बड़ा मिथ है कि BBC इज वेरी न्यूट्रल. बड़ा मिथ है कि वॉइस ऑफ अमेरिका बड़ा न्यूट्रल है. बड़ा मिथ है कि कहते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट बड़ा न्यूट्रल है. जब हम हिंदुस्तानी
हमारे पास कुछ नहीं था, न कोई टेलीविजन था, तब बीबीसी जो बताता था हमको अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि बीबीसी इज ए गॉस्पेल ट्रुथ। लेकिन 3 साल हमने भी काम किया है। हम इतने भोले लोग थे, इतने इनोसेंट लोग थे कि कभी भी किसी दूसरे की नीयत पे शक नहीं किया हमने। और जैसा हम 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति हमारे अंदर है, 5000 साल पुराना जो सनातन का डीएनए है, हम ये समझते हैं कि जितने अच्छे हम हैं दूसरा भी होगा। इस वजह से हम समझते थे कि बीबीसी आज से 50 साल पहले भी एक एजेंडा चलाता था, आज भी वॉइस ऑफ अमेरिका एक एजेंडा चलाता है, एक नैरेटिव सेट है, लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते थे कि इनका नैरेटिव क्या है। तो खबर में आपको कुछ ऐसा बता दिया तो आपको लगा बड़ा न्यूट्रल है, लेकिन बीबीसी तो उस सरकार, उस इंपीरियलिज्म का एक एजेंडे का हिस्सा था, जिसके माध्यम से वो दुनिया में अपने उस आइडियोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उन्हीं लोगों को प्रमोट करें जो एक खास एजेंडे पे चलते हैं। आज बीबीसी को कौन देखता है? आज हिंदुस्तान में जो हो रहा है लोग लाइव दिखा रहे हैं, किसी जमाने तो लाइव था ही नहीं हमारे यहाँ, तो लोगों को लगता, लेकिन बीबीसी या तमाम, इसीलिए आज देखिए बीबीसी की कितनी सारी सर्विसेज जो है वो बंद हो गई हैं। तो मेरा कहना यह है कि बीबीसी बनना, मैं कहता हूं कि बीबीसी अगर कोई बनने की सोचता है तो बिल्कुल ना बने, वो जैसा है फिर भी कुछ है। आज हिंदुस्तान के चैनल हैं तो ठीक है, मैंने माना कि पीआर एक्सरसाइज भी हो गई है लोग, लेकिन फिर भी आप हिंदुस्तान की बात को हिंदुस्तानी में कहते हैं ना। आज भी बीबीसी का नैरेटिव क्या है? बीबीसी कश्मीर के बारे में बहुत चिंतित है, लेकिन अपने यहाँ क्या है? उन्होंने भी तो कब्जा कर रखा है एक टुकड़े के ऊपर। तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, अपने यहाँ बताएं क्या है? अपने यहाँ जो उन्होंने इलाके में, तो मैंने वही कहा कि ये जो नैरेटिव है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था, हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जानते नहीं थे, बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं थे, लिहाजा हमें लगता था कि साहब बीबीसी ने बड़ी अच्छी बात कह दी है। ये आज भी, और आज तो ज्यादा एग्रेसिव एजेंडा इसलिए चला रहे हैं कि आज जो कुछ भी उन्होंने पिछले कई हजार सालों में एक पाखंड तैयार किया था, एक मिथ तैयार किया था, वो टूट रहा है। क्योंकि आपको भी सच्चाई पता चल रही है, आपको भी सच्चाई पता चल रही है, उस गरीब आदमी को भी सच्चाई पता चल रही है कि ये हो क्या रहा है, कह क्या रहे हैं ये साहब, कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कैंपेन चलाएगा बीबीसी और कहेगा, क्या कहते हैं कि साहब मैं न्यूट्रल हूं। हिंदुस्तान के मीडिया में जो न्यूट्रल पत्रकार अपने आप को बताते हैं, जो कहते हैं कि साहब हम बड़े गरीब की बात करते हैं, कौन एडिटर ये कहेगा कि भैया अगर ये आदमी चुनाव जीत गया तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे? यू आर ए पार्टी, व्हाई यू बिकम ए पार्टी यार? यू से व्हाट यू वांट टू से, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, गो टू द एडिटोरियल पेज। Why you are using every news for your opinion? Why you are mixing your opinion in the news? News is something different, opinion is something different. But इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान में उन लोगों को ज्ञान भी नहीं था और लोगों के पास इंफॉर्मेशन का फ्लो वन साइडेड था। बताइए हमारे जमाने, आपके जमाने में, आप जहां जब पैदा हुई होंगी तो आपके घर में 4-5 टेलीफोन होंगे। इंफॉर्मेशन का फ्लो कितना है? जो 10 साल का बच्चा है उसके हाथ में मोबाइल है, उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन हमारे जमाने क्या था? एक अखबार का एडिटोरियल पढ़ लिया बस, उसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं। रेडियो में खबरें आ गई, वो भी सरकारी सर खबरें होती थी, तो आपको व्यू नहीं पता चलता था। तो उस जमाने ज्यादा डिफिकल्ट था ना। आज तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप तय कर सकती हैं क्या गलत है क्या सही है। उस जमाने इंफॉर्मेशन नहीं थी, और जब इंफॉर्मेशन का फ्लो शुरू हुआ और डिजिटल मीडिया आया तो सारे लोग एक्सपोज हो गए। आज टेलीविजन कौन देखता है? आज हमारे यहाँ टेलीविजन हिंदुस्तान में वही कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे नंबर 1 टॉपिक होता है, उसी पे डिस्कशन होता है। पहले एडिटर अपना मालिक अपना एजेंडा चलाता था, उसकी किस पार्टी से संबंधित है, किस पार्टी से उसको प्रॉफिट हो रहा है, किससे उसकी इंडस्ट्री चल रही है, उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। तो आज टेलीविजन भी एक तरीके से ऑब्सोलीट हो रहा है। सोशल मीडिया में आपको भी अधिकार है अपनी बात कहने का। आप अपनी बात, अगर आपकी बात अच्छी है तो दुनिया में, दैट्स ऑल। तो आज मैं यहां हूं, बैंकॉक के लोगों ने बुलाया है, तो मुझे किसी चैनल को देख के नहीं बुलाया है। यूट्यूब पे मैं कुछ भी कहता हूँ, अपलोड करता हूँ, लोगों को लगा अच्छा है, उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। सर लेकिन ये आपको आयरॉनिक नहीं लगता कि जैसे आज हमारे जैसे जब मैं पैदा हुई तो हमारे पास रिसोर्सेज के बहुत से लाइक फ़ोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और घर में ऑलमोस्ट हर किसी के पास एक गैजेट तो होता ही है। आप लोगों के टाइम में प्रिंट मीडिया थी, रेडियो मीडिया थी, लेकिन जो वो द कॉम्पोनेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी, उस पर आप क्या कहेंगे कि आज के, अगर मैं तो जो अनअवेयरनेस फैक्टर है वो आज के लोगों में पहले से ज़्यादा है कि पहले से कम है? नहीं, उसमें सिर्फ ये ज़रूर हो रहा है कि आज सोशल मीडिया पर भी लोग जो हैं अपने नैरेटिव के लिए रेफरेंसेस कहाँ से ले रहे हैं। जो बात आप कह रही हैं कि हमारे ज़माने में
सरकार की खबर आ गई रेडियो पे, हमने सुन ली। आज प्रधानमंत्री ने ये इनॉग्रेशन किया है, आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है, आज गृह मंत्री ने ये कहा है, डिफेंस मिनिस्टर, इसके अलावा तीसरी खबर तो आती नहीं थी। लेकिन आपके पास में जो पावर है वो ये है कि अगर आपको ये लगता है कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता, देन यू हैव 10 सोर्सेज। हमारे पास सवाल है, सवाल के पूछने के माध्यम से। ये सवाल है ना आपके पास कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन आपके पास किताबों से नहीं है, सोशल मीडिया से भी है, और दुनिया के टेलीविजन हैं। आप बैठ करके 1 मिनट में 50 टेलीविजन को देख सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं। यहाँ पे ये खबर आ रही है, यहाँ पे ये खबर आ रही है, तो दोनों रुख आपको पता चल गए। फिर आप उसमें से अपना आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा इसमें इतनी बात क्यों कही जा रही है, इसमें, तो फिर थर्ड एंगल दिमाग में आता है। तो फिर इस तरीके का है ना। तो मुझे लगता है कि आज अगर आप ये कहें कि बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो आज की जनरेशन है इंफॉर्मेशन होने के बाद भी कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज नहीं है। आज पॉलिटिकल एजेंडा चलाने वाले लोगों ने भी इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों के पूरे ग्रुप हैं, उनका पूरा आईटी सेल है, वो न्यूज़ फ्लोट करते हैं, वो न्यूज़ को क्रश भी करते हैं, किस न्यूज़ को ज़्यादा चलाना है, किसको नहीं चलाना है, किसको वायरल करना है। लेकिन थोड़े दिन के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद दूसरे लोग भी अपनी न्यूज़ को देते हैं। तो आप बहुत देर तक वो चलता नहीं अगर कोई झूठ बात फैलाई जाए। बहुत सारी झूठ खबरें उड़ती रहती हैं, सरकार के बारे में झूठ उड़ता रहता है, लोगों के बारे में झूठ उड़ता रहता है। लेकिन 2 मिनट में लोग अब इतने अवेयर हो गए कि नहीं नहीं यार ये फेक न्यूज़ है, दैट इज देयर। लेकिन ये फेक न्यूज़ का कंसेप्ट कभी पहले नहीं था, अब आया है, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो आपके कम से कम आसानी तो है कि आप भाई दिस इज फेक न्यूज़, शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तो पता ही नहीं चलता था ये न्यूज़ कौन सी सरकार ने प्लांट करा दी है या किस एजेंडे के तहत हुई है। अब वो प्लांट हो गया, अब चल रहा है, पता महीनों में तो नहीं पता चल पाता था, अब तो 2 घंटे में पता चल जाता है कि भाई ये फेक न्यूज़ है, ये गड़बड़ है, ये नहीं है, ये खबर ये थी। तो वो भी एक अच्छी चीज है। लेकिन जब कोई चीज नई इमर्ज होती है तो शुरू में थोड़े उसमें गड़बड़ होती है, फिर फिल्ट्रेशन के बाद में वो एक सेटल कर जाती है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया धीरे धीरे सेटल कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग किसी की स्पीच सुनते हैं और उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसकी स्पीच सुनते हैं, फिर उसको क्रॉस चेक करते हैं 2, 4, 10, 20, 15 बार, वो तब उसके बारे में राय बनाते हैं कि ये आदमी ठीक बात कह रहा है। और वो राय बनने के बाद आप देख रहे हैं कि पूरे देश में क्या है। आज बड़े बड़ी सत्ताएं हिली हुई हैं, बड़े बड़े मथाधीश जो बैठे हुए थे उनको लगता था वही ओपिनियन बनाते हैं, आज वो लोग खत्म हो गए। आज जो आदमी मूंगफली बेच रहा है ना, उसको भी पता है देश में क्या हो रहा है। वो मोदी से नहीं मिला है, वो गृह मंत्री से नहीं मिला है, लेकिन वो ये कहता है ये आदमी बात सही कह रहा है, उसको पता नहीं कुछ भी। तो क्रेडिबिलिटी भी है लोगों की, और कुछ लोग इसको चला भी रहे, नहीं साहब ये तो झूठ। अगर हम ये कहें कि आज के लोग मुद्दों पे अवेयर हैं और उनसे कनेक्ट करके खुद सोचने की क्षमता रख रहे हैं, तो ये सही होगा। एब्सोल्युटली, देखिए ना कि कितने छोटे छोटे मुद्दों पे बात होती है। आज बताइए कि कभी इस देश में चर्चा हुई थी कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है, आर्टिकल 370 क्या है, 35A क्या है। ये ठीक है, एक सर्टेन क्लास हो सकती है उसको पता हो। आज आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, आई यूज सोशल मीडिया। पिछले 70 साल से देश को यह नहीं पता था कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल 35A है, विच इज बीन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है, ये किसको पता था? जम्मू कश्मीर में भारत की सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं होती थी, ये किसी को पता नहीं था। भारत की संसद का वहां कानून नहीं था। भारत के हजारों कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, करप्शन, ये कुछ भी वहां लागू नहीं था। तो सोशल मीडिया में लोगों को लगा, पहले लोग समझते थे कश्मीर में कुछ हो रहा है, और एक प्रोपेगेंडा, वहां जो एंटी इंडिया लोग थे, वहां 7 लाख फोर्स लगा रखी है, वहां 7 लाख फोर्स लगा रखी है, ये प्रोपेगेंडा चलता था। अब लोगों को पता चला कि 7 लाख, जहां 1.5 करोड़ आबादी हो वहां 7 लाख फौज, और वो भी कश्मीर में, तो 7 लाख फोर्स रहने के लिए इतनी जगह कहां है वहां पर? इनफैक्ट पहले लोग जब जम्मू कश्मीर का कोई आता था तो उसको भी बड़ी अजीब निगाहों के साथ ट्रीट। जम्मू कश्मीर में आप जाते थे तो कहते थे इंडिया से आए हो क्या? हाँ, ये सवाल होता था उनका। वही मैंने कहा कि उस जम्मू कश्मीर को ऐसा बनाया गया कि पता नहीं कोई जन्नत की जगह है, और वहां के अंदर वहां के लोगों को जमहूरियत चाहिए, वहां के लोगों को इंसानियत चाहिए। बिहार के लोगों को इंसानियत नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग और यूपी के लोग तो जानवर हैं, तो उनको इंसानियत। तो ये जो नैरेटिव था कि भाई भारत का पैसा जाता है, हमारा और आपके टैक्स से दिल्ली सरकार उनको पैसा देती है, उनका जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है? पिछले 70 साल से आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद के अलावा कश्मीर ने क्या दिया है? जितने लीडर दिए सब आपने सेपरेटिस्ट दिए।
जो चाहे सेकुलरिज्म की शक्ल में आए या समाजवाद की शक्ल में आए, वो तो देश तोड़ने वाले एजेंडे के तहत आते थे। उनकी बात मानोगे तो सेकुलरिज्म है, उनकी बात नहीं मानोगे तो इंडिया जो है कम्युनल हो गया है, एस्ट्रोकेट हो गया है और तानाशाह हो गया है, अलग अलग शब्दों में ज्वाइन करते थे। लेकिन आज देखिए एक्सपोज हुआ और जब पूरे देश को पता चला तो आप देखिए ना कि 70 सालों में इतनी सरकारें आई, किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। 370 और 35A ने देश को आतंकवाद दिया है, आतंकवाद को पाला है, और जब देश को पता चला उस दबाव में सरकार भी आई, उस सरकार ने कर दिया। सर, सेक्युलरिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म है क्या और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर देखिए, मल्टीकल्चरलिज्म और सेकुलरिज्म में एक ही है। आज भी अगर हम ये कहें कि सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म का इस्तेमाल वहां किया गया जहां स्टेट या तो चर्च से चलती थी या मस्जिद से चलती थी। तो चर्च का प्रभाव ना हो, राजा के ऊपर चर्च का प्रभाव ना होना नहीं चाहिए। कोई ईसाइयों का कोई मामला है तो उसके अंदर सरकार जो है वो फैसला ले एक न्यूट्रल होकर के, सरकार चर्च से गाइड ना हो। तो वहां सेकुलरिज्म की जरूरत थी कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर तो देश कभी, हमारे यहाँ जो हमारा संविधान है वो तो ना मंदिर से चला, ना मस्जिद से चला, ना चर्च से चला, तो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म की जरूरत क्या थी? हमारे यहाँ एक संविधान बनाया गया, जिस संविधान की लंबी बहस के बाद 26 जनवरी 1950 में वो लागू हुआ। अब उस संविधान में जो भी प्रोविजन थे उस वक्त के सारे लोगों ने बनाए, ना तो वो हिंदुओं के लिए बनाए ना मुसलमानों के लिए बनाए, देश के लिए बनाए। तो हम तो जो हमारा संविधान है वही सेकुलर है, और हमारी सोसाइटी में सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी। आज अवधारणा कुछ भी हो, लेकिन सनातन के अंदर आज से आप सोचिए कि मैं आपको 1722-21 की बात बता रहा हूं, 700 के आसपास की। राजा दाहिर ने, जो राजा दाहिर सेन था, सिंध का राजा, प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान में जो लोग बच गए थे उनको शरण दी, अपने यहाँ उनको बचाया। और जो मुसलमानों का हीरो था मीर कासिम, उसने मोहम्मद साहब के खानदान को मारा और उसको एक हिंदू राजा ने बताया। अब उस राजा को क्या उस वक्त सेकुलरिज्म की वजह से उस मोहम्मद साहब के खानदान को बचाया कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है? ये हमारी डीएनए में है। भारत की मिट्टी को सेकुलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। यहां हजारों सालों पहले भी पारसी आए थे। यहां कौन से धर्म के लोग नहीं है, किस देश के लोग नहीं है? 27 देशों के लोग इस देश में आज भी शरणार्थी हैं, बाहर से आए हैं। किसी ने उनको मारा नहीं, किसी ने उनका धर्म नहीं पूछा। भारत ने एक लड़ाई लड़ी सन 1971 की। ये इसलिए बात कह रहा हूं कि आज की जनरेशन को पता होना चाहिए। अगर भारत हिंदू मेजॉरिटी की वजह से ये लगता है लोगों को कि साहब हिंदू मेजॉरिटी है तो शायद ये किसी माइनॉरिटी को बड़ी दबाएगी। 71 वॉर के 2 हीरो हैं, उसमें जनरल जैकब है और सैम मानेकशॉ हैं। एक पारसी है, एक यहूदी है। लेकिन देश ने कभी यह नहीं पूछा कि इनका मजहब क्या है। देश के आज भी हीरो हैं, आज भी नहीं पूछा कि मजहब क्या है। आज भी नहीं पूछा किसी ने, और आज भी हीरो हैं। और जनरल जैकब को जब इजराइल ने यह कहा कि हम आपको चाहते हैं कि आप इजराइल आ जाएं, हम आपको नागरिकता देके अपना सर्वोच्च सम्मान देंगे, जनरल जैकब ने कहा भारत मेरी मां है, मैं अपनी मां को छोड़ के नहीं जा सकता। अब उस देश को सेकुलरिज्म की, हमारे यहां जो डिस्टॉर्ट हुआ है सेकुलरिज्म, उस सेकुलरिज्म को एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के प्रो कर दिया गया है। उस कम्युनिटी जो इस्लाम को मानने वाली है, जब तक आप उनकी किसी भी नाजायज मांग को मानते रहेंगे तब तक यह देश सेकुलर है। यानी जम्मू कश्मीर राज्य जो है, उस राज्य ने ऐसे कानून बनाए कि भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू, पारसी जम्मू कश्मीर में जाकर के बसने के लिए उनसे नागरिकता का आवेदन करेगा और वो नागरिकता देंगे तो भी आप नागरिक हैं। आजाद भारत में 2 संविधान चल रहे हैं, आजाद भारत में 2 निशान चल रहे हैं, 2 प्रधान चल रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो आप सोचिए कि कश्मीर में आपको, मुझे, मेरे दोस्त जमाल को, मेरे दोस्त सरमत को अगर जम्मू कश्मीर में जाके बसना है तो उनको नागरिकता कौन देगा? वहां की मुसलमान सरकार। तो हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई को तो जम्मू कश्मीर में नागरिकता नहीं दे रहे आप, जबकि आप भारत सरकार के पैसे से चलते हैं, हमारी जमीन पे है, हमारी फौज आपको बताती है। लेकिन क्योंकि आप पहला स्टेट है जहां मुसलमान 70% है,
वहां तो ये कानून है कि हम किसी को हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम को देंगे ही नहीं हम, और पाकिस्तान से आने वाले को दे देंगे आप। बर्मा से 500 किलोमीटर दूर से मुसलमान रोहिंग्या, उसको आपने नागरिकता दे दी है, इसका मतलब आप एंटी हिंदू हैं। लेकिन वही लोग, वही कांग्रेस पार्टी, वहां जो जम्मू कश्मीर है वहां की 2 पार्टियां हैं, पीडीपी और नेशनल कांग्रेस, वही लोग भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान को आप नागरिकता क्यों नहीं दे रहे। यानी भारत तो पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी को, उस रेपिस्ट को जिसने उस हिंदू लड़की के साथ रेप किया है, उस आदमी को जिसने हिंदुओं को मारा है, उस आदमी को जिन्होंने वहां हिंदू लड़कियों के साथ उनका पूरा घर लूटा है, उसकी तो पैरवी कर रहे हैं कि भारत उन्हें नागरिकता दे। लेकिन आप भारत के लोगों को भारत की धरती का खा रहे हैं, भारत की धरती का पैसा ले रहे हैं, आप नागरिकता नहीं देंगे। तो इसे शुद्ध रूप से आप एंटी हिंदू हैं और आप नहीं कहते। तो अगर इनकी यह बात मांगी तो साहब देश सेकुलर है। सरकार ने कहा कि भाई वहां से वो लोग जिनके साथ उनकी उपासना पद्धति, उनके फेथ, उनकी आइडेंटिटी के कारण अगर उनको मारा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, तो भारत उनको नागरिकता देगा। लेकिन कमाल यह कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। तो भाई ये फिर अजीब मजाक है। तो ये झगड़ा जो आज देख रहे हैं भारत में, ये डेलिबरेटली किया जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो 30-35 करोड़ मुसलमान है, आज भी वो एक एजेंडे के तहत ये सारे काम कर रहा है। उनको लगता है कि मुगल चले गए थे, हम उनके वारिस हैं, तो ये हिंदुओं के पास सरकार क्यों है, तो हमारे पास होनी चाहिए। उन्होंने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया इंडिया को, वो उस इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जिसमें सारा निजाम मुसलमानों के हाथ में हो, तब तो वो एक्सेप्ट करेंगे। इसके बावजूद भी भारत के संविधान ने इतनी फैसिलिटीज दी, जबकि भारत का संविधान सेकुलर है। सर, मूविंग ऑन, आप इतने ठोस मुद्दों पे बात करते हैं और शुरू से इतने ठोस मुद्दों पे बात करते आए हैं। What was the thing which kept you motivated to talk on such topics? क्योंकि ऐसे टॉपिक पे तो कई बार you get threats, you get calls. तो what was that fire in you जिससे लगा कि you should talk? When I was in school in Aligarh University, those days you even not call this as a microscopic minority. We have 2-3 families out of 40,000 Muslim. So I gone through all, कुरान शरीफ कंपलसरी था बचपन में, उसको पढ़ा। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कम्युनल माहौल था, उसको देखा, एहसास किया। बट वी नो दैट वी कांट रिएक्ट, दिस इज नॉट द प्लेस। सो ओवर द टाइम आई रियलाइज कि व्हाट इज देयर साइक, तो लिविंग विद देम, स्टडीइंग विद देम, आई रीच ए कंक्लूजन कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में एक ही एजेंडा है कि हमें पावर कैप्चर करना है, अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है, अपने लोगों को मजबूत करना है। अगर उसके साथ में कोई फायदा भारत का हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कि वो इतने समय तक मैं उसको देखता रहा, फिर पाकिस्तान गया तो मुझे लगा कि भारत को थ्रेट बाहर से नहीं है, द इंडियन स्टेट और इंडियन नेशन इज बेसिकली हैज थ्रेट विद इन दैट। तो एक होता है कि आप किसी चीज के बारे में बोलते हैं सिर्फ बोलने के लिए, एक होता है कि आप रेफरेंस दें, बुक का नाम बताएं, पेज नंबर बताएं, किसने लिखी है, कब लिखी है, तो आपका अपना थॉट इंटरप्रिटेशन आसान हो जाती है। तो इस्लाम को लेकर के मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों में एक सह अस्तित्व की भावना थी, तो उन्होंने कभी इस्लाम के बारे में कुछ कहा नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा कि औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, ये वो लोग थे जिन्होंने भारत को लूटा, और जब भारत को लूटा तो यहां मुसलमान भी था, उसको भी लूटा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसके लूटने की तकलीफ हिंदुओं को तो है, मुसलमानों को नहीं है। अगर एक लुटेरे के नाम से इस हिंदुस्तान में रोड बनाई गई है, तो ये तकलीफ जो हिंदू को होनी चाहिए वो उनको भी होनी चाहिए। बट व्हाई दे आर एसोसिएटिंग देमसेल्फ विद द औरंगजेब एंड द बाबर? ही वाज एग्रेसर। जो भारत में रह रहे थे मुसलमान, जो कहते हैं कि साहब हमने मिलकर लड़ाई लड़ी है, तो भाई आप भारतीय हैं ना। अंग्रेजों ने अगर भारत को लूटा तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े ना, तो उससे पहले मुगल थे, तो मुगलों ने लूटा। लेकिन मुगलों ने हिंदुओं के साथ जाति की, यहां के मंदिर तोड़े, तो यहां का मुसलमान बाबर और औरंगजेब के जाने के बाद उन मंदिरों को जिसको उसने लूटा है, तोड़ा है, उसको क्यों बनाए रखना चाहते हैं? व्हाट इज देयर इंटरेस्ट इन दैट? तो हिंदू मुस्लिम की बात यहां से शुरू होती है कि अयोध्या में राम मंदिर था,
उसको किसी ने तोड़ा, तो मुसलमानों को कहना चाहिए था बाबर से हमारा क्या लेना देना है, औरंगजेब से हमारा क्या लेना देना है। भाई हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया उन्होंने, वो हिंदू की थी मुसलमान की थी, डजंट मैटर। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान आज भी, जो हमारे यहां 30,000 मंदिर तोड़े गए हैं, जिसमें बड़े में खासतौर से अयोध्या का मामला है, चाहे काशी का मामला है या मत, ये हिंदुस्तान के मुसलमान बाबर और अकबर को इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं कि वो बार बार अपने उस हिंदू भाई को ये बताना चाहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें गुलाम बनाया था, हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी, हमारे बाप दादाओं ने इस पूरे देश पर राज किया था, लिहाजा हम उन्हीं के। तो आप हिंदुस्तान में एक मेजोरिटी कम्युनिटी को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रखना चाहते हैं, उसको कुंठा में रखना चाहते हैं, उसको आप जलील करना चाहते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा होता है। तो 70 साल के बाद इस देश में एक बदलाव है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मुसलमानों की चिंता है कि 370 क्यों हटी, 35A क्यों हटी, बाबर का रोड क्यों बदला जा रहा है, और इलाहाबाद का नाम क्यों बदला जा रहा है, और फैजाबाद का नाम क्यों बदला जा रहा है। दुनिया में उससे पहले नाम, अकबर के आने से और बाबर के आने से पहले भी हिंदुस्तान था और भारत था। वो आए, उन्होंने चीजें तोड़ी और अपनी सत्ता स्थापित की। तो आज हमारी सत्ता है, तो वही नाम हम रख रहे हैं। आज कोई रोड का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रख रहा, आज से 500-1000 साल पहले जो नाम थे प्रयागराज, वही नाम हम रख रहे हैं जिसको। तो अगर आप अपने इतिहास की तरफ लौट रहे हैं तो इसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप भारत के हैं, अगर आप भारत के हैं तो भारत की चिंता होनी चाहिए। अगर आप भारत के हैं तो भारत की सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए, उसमें आपको क्या तकलीफ है कि नहीं साहब भारत को इजराइल से संबंध नहीं रखना चाहिए। आप भारत का हित देखेंगे, अपने मजहब का इंटरेस्ट देखेंगे। तो जिन लोगों के लिए भारत का संविधान पीछे है और भारत अपनी मजहबी किताब आगे है, वो इस देश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इसलिए उनके बारे में जोर से बोलना चाहिए, कस के बोलना चाहिए, तथ्यों के साथ बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी जगह हुई है जहां डर नहीं है, मेरे अंदर कोई डर नहीं है। और मैं ये मानता हूं सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, और कमजोर आदमी थ्रेट देता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितने लोग चेतावनी धमकियां देते हैं, ये निहायत कमजोर लोग हैं। अगर आपने कोई बात कही है और मेरी आपसे मैं एक राय नहीं हूं, तो सिमी जी मुझे आकर के आपसे डायलॉग करना चाहिए, आपको हरा देना चाहिए। लेकिन मैं हरा नहीं पाऊंगा तो मैं आपको फिजिकली असॉल्ट करूंगा। ये मेरी पहली वीकनेस है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान, ये किसी का एजेंडा पूरा कर रहे हो, ये कम सबसे ज्यादा डरपोक लोग हैं। और ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तान के मुसलमान तो 100% हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, और ये तो उस दौर में कन्वर्ट हुए हैं जब तलवार थी। तो जब डर के मारे तुमने मजहब, धर्म छोड़ के मजहब बदल लिया, हमारे बाप दादाओं ने तो तब भी नहीं बदला था। हम तो गुरु गोविंद सिंह के उन लोगों में से हैं जिनके 6 साल के और 9 साल के बच्चे ने कहा कि किसी भी कीमत पे इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं वाहे गुरु का पुत्र हूं, वाहे गुरु का रहूंगा। उन 6 साल और 9 साल के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। तो हमारे पूर्वज तो वो थे भाई। तो हम जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे यार? तुम हमको डरा रहे हो, तुम तो खुद डरे हुए लोग हो। तुम जिस दिन हम ताकत में रहेंगे और इस देश कानून से चलने लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 साल में मुसलमान कन्वर्ट हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि जर्नलिज्म एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू प्रमोट सच थिंग्स टू द पब्लिक? देखिए, मैंने वही कहा कि जो काम जर्नलिज्म को करना चाहिए था नहीं किया ना, हम नहीं कर सकते थे ना विद इन दैट। बीबीसी में काम करना है तो अयोध्या के ऊपर एक एजेंडा ही दूसरा होना चाहिए। अयोध्या पे ये बात मत करो, नो 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 नो, यू कांट कॉल इट ए राम मंदिर, बट यू कैन कॉल इट ए बाबरी मस्जिद। आज भी आप कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो बीबीसी का नैरेटिव यह है। तो आपको जर्नलिज्म में स्पेस कहां थी? आज भी आप जब नौकरी करेंगे तो कितना भी आपको स्पेस हो, लेकिन एक स्पेस के बाद लगेगा यार ये नहीं कह सकती। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के खिलाफ बोलिए, लेकिन शायद 25 साल के जर्नलिज्म में, 26 साल के जर्नलिज्म में बड़ी सारी स्टोरीज की होंगी, एक लंबा कैरियर था। क्या बात है कि वो एक सेलेक्टेड ऑडियंस मुझे जानती थी, और क्या है 3 साल बोलने से मैंने कुछ इश्यूज को बोलना शुरू किया। जो है वो ही कह रहा हूं। न मुझे इस बात की चिंता है कि मैं किसी को जवाब दे हूं, न मेरा कोई मालिक है, न मुझे किसी से तनख्वाह लेनी है। और ये बात बैंकॉक तक, न्यू जर्सी तक, अगर ये विदेशों में जो लोग हिंदुस्तानी आज से 50 साल पहले आए होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, अच्छी दुनिया देखी होगी उन्होंने, तो उनका IQ लेवल दूसरा होगा, वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव को देख रहे होंगे। तो अगर पुष्पेन हेट स्पीच दे रहा है, पुष्पेन किसी के खिलाफ जबरदस्ती बोल रहा है,
तो मैं मान सकता हूं कि हिंदुस्तान में हो सकता है, लेकिन दुनिया के लोग तो जज कर रहे हैं ना, वो तो वेल रेड लोग हैं ना। तो अगर दुनिया भर के लोगों को लग रहा है कि यार ये आदमी बात सही कह रहा है, ये बात बहुत पहले कहनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है कि ये बात मैं जर्नलिज्म में रहते हुए नहीं कह पा रहा था। तो जो काम जर्नलिज्म को करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जर्नलिज्म में लोगों के पर्सनल एजेंडे चल रहे हैं। ये एडिटर साहब हैं, इनका खास एजेंडा है, ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव भी लड़ेंगे, हार के भी आएंगे, फिर एडिटर हो जाएंगे। मतलब अगर हम ये कहें कि जो जर्नलिज्म है दैट इज इंक्लाइंड टू सर्टेन पार्टीज। यस, मैंने कहा ना पीआर काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है। अगर होता तो आज उनको ये जो टीआरपी की चिंता है ये नहीं होती ना। अगर आपकी बात में दम होगा तो मैंने कहा ना, क्या कहते हैं, अगर मेरी बात गलत होती तो मैं आपके साथ यहां बैंकॉक में नहीं खड़ा होता। मुझे लोग नहीं इनवाइट करते, मुझे न्यूयॉर्क नहीं इनवाइट करते, न्यू जर्सी नहीं इनवाइट करते, मुझे अभी अगले महीने मॉरिशस जाना है, कोई क्यों इनवाइट करेगा? Why people are inviting me? While they are wasting the money on me? I am not a celebrity. I am a simple guy. लेकिन उनको लग रहा है कि ये आदमी सही कह रहा है क्योंकि वो मेरी स्पीच सुनने के बाद उसके रेफरेंसेस लेते होंगे ना। ये तो हो सकता है कि 2-4 लोग इन्फ्लुएंस हो जाए आवाज से, भाई ओरेटरी से, लेकिन बाकी लोग तो ऐसा नहीं है। There must be some reason. इसका मतलब जर्नलिज्म में कर रहा था, लेकिन जर्नलिज्म में वो बात नहीं कह पा रहा था जो कहनी चाहिए थी, जो समाज और देश के लिए इंपॉर्टेंट है। सर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आप काफ़ी कंट्रीज जा चुके हैं, यू हैव विजिटेड टू मेनी प्लेसेस, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद लाइक जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज में गए, इंडिया में, लेट्स कंपेयर इंडिया विद द डिफरेंट कंट्रीज, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? देखिए, एक चीज़ है कि हिंदुस्तान में लोग, भाई अगर कुछ लोग मुझे बुलाते हैं, इस पे लोग कहते हैं साहब ये सरकार के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा है कि जो बाहर रिएक्शन है, जैसे जब मैं आपके शहर बैंकॉक आया तो मैं तो किसी को नहीं जानता था, मैं तो ऑर्गेनाइजर की भी शक्ल नहीं जानता था कि कौन है मेरे ऑर्गेनाइजर, क्या है, क्या बैकग्राउंड, मुझे नहीं जानता था। लेकिन जैसे ऑडियंस में मुझे लगता था कि 90% लोग मुझे जानते हैं। तो वही मैंने कहा कि मेरे आने से पहले मैं क्या हूं ये आप जानती हैं। तो सिर्फ इतना ही भर था कि आप मुझे आज फिजिकली यहां देख रही हैं, तो जो जानते हैं, जिन्होंने एक लंबे समय से सुना है, उन्होंने मेरे बारे में एक ओपिनियन बनाई है, और वो ओपिनियन ये है कि ये है, और ओपिनियन उनके दिमाग में मेरे प्रति एक पॉजिटिव है कि ये आदमी राष्ट्र के लिए कुछ बोल रहा है, सच बात बता रहा है, जो हिस्ट्री में उन्होंने नहीं पढ़ा ये वो बता रहा है, ये इस्लाम के बारे में वो बता रहा है जो बताया नहीं गया। तो उनके पास रिसोर्सेज हैं, दे आर वेल ऑफ पीपल, और अगर वो सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद मेरी बातचीत सुनने के लिए, भाषण के लिए मंदिर तक में आ रहे हैं, तो कोई चीज तो ड्राइव कर रही है ना उनको। तो भारत में तो फिर भी होता है कि लोग इस पार्टी के उस पार्टी की धारा के अंदर आपको देखते हैं, लेकिन भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग अब सच्चाई जानना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जो हिंदुस्तानी अपने मुल्क से बाहर रहते हैं, उनके फोर फादर्स वहां हैं, उनके एंसेस्टर्स वहां हैं, उनके अंदर अपने देश के प्रति एक बड़ी चिंता होती है। क्योंकि आप पूरी दुनिया में जब यहाँ रहते हैं तो आप ज्यादातर विदेश में रहते हैं, हर चीज बाहर की होती है, आपको अपना कल्चर भी डिफेंड करना होता है, भाषा भी डिफेंड करनी होती है, सब कुछ। भारत में तो नहीं होता ना, भारत में अंग्रेजी बोलिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको लगता है हिंदी बोलने वाला कोई मिल जाता है तो आपको अच्छा लगता है। फिर आप ये नहीं देखते हो कि ये किस जाति का है, कहाँ का है, किस इलाके का है। वो हिंदुस्तानी है तो उसके घर खाना खाने का आपको अलग स्वाद आता है। तो उसका असर ये होता है कि आप जब बाहर रहते हैं तो बाहर की दुनिया को देख कर को लगता है कि यहाँ हर आदमी अपने देश के लिए कितना चिंतित है। तो आपके अंदर भी एक फीलिंग होती है यार कि हम अपने देश के बारे में क्यों नहीं सोचते, हमारा देश ऐसा क्यों नहीं है, उसमें ये कमी है, ये कमी है। तो उसकी कमियों के प्रति भी आप रहते हैं, और उस देश को कोई अगर अच्छा भी करता है तो उसके साथ आप खड़े हो जाते हैं। तो एक खासतौर से मैं बैंकॉक की कहूँ कि बैंकॉक जो है कल्चरली बहुत क्लोज है, बहुत इंक्लाइन है, और यहाँ बहुत सारे मैंने होटल देखे। जिस होटल में ठहरा, अब उस होटल के रिसेप्शन पे गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई थी, और मैं उस बेचारे से बात अंग्रेजी में करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा, वो अपने थाई में कहे जा रहा है। तो मैंने इशारा करके कहा तो उसने यूं कर दिया, तो मुझे लगा कि अंडरस्टैंड कि आई एम इंडियन। तो इससे लगता है कि आपने यहाँ आने के बाद, थाईलैंड तो चलिए फिर भी मैं मानता हूं कि बहुत हद तक हमारे कल्चर के पास है, लेकिन बाहर की दुनिया और बाहर के देशों को हिंदुस्तानियों ने अपने बिहेवियर से, अपने कल्चर से, अपनी सभ्यता से, अपने काम करने के तरीके से लोगों का दिल जीता है,
और लोगों के अंदर भारत क्या है वो भारत नहीं है जो कभी कभी भारत की छवि क्रिएट की जाती है, विदेशी मीडिया करता है कि सडनली कोई भारत में एक रेप की घटना हो गई तो कहा जाता है रेपिस्तान हो गया, भारत ही हो गया। उस छवि को आप लोगों ने यहाँ एक तरीके से एम्बेसडर का काम किया है, यहाँ आपने भारत की अच्छी छवि का विज्ञापन किया है। तो लोग जब आपसे मिलते होंगे, आपसे देखते होंगे तो आपको देख करके भारत की छवि बनाएंगे वो, अच्छा भारत के लोग ऐसे होते हैं, उस प्रांत कैसे होते हैं। ये बड़ा काम है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सुखद अनुभव है कि बैंकॉक में मुझे अभी तक नहीं लगा कि मैं कहीं विदेशी धरती पे हूँ। मंदिर हैं चारों तरफ, लोग बड़े रिलीजियस हैं और बड़े मिलिएबल हैं, दे ऑलवेज स्माइल। एक वो जो वेस्ट में चले जाइए तो ऑलवेज बी टफ और ऑलवेज ही स्टिफ टाइप का एटीट्यूड नहीं है। सो आई एंजॉयड माई ट्रिप। सर, इन द एंड आई वुड लाइक टू टॉक ऑन समथिंग कि सर लोगों, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट इज सेक्शन 35 एंड 35A एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है इसे लेकर। भारत के संविधान में जवाहरलाल नेहरू साहब ने उस वक्त के राष्ट्रपति, राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिलवाया। और आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी थे और कश्मीरी नेताओं से उनकी बड़ी नजदीकियां थी। और पूरे भारत का जब एकीकरण हो रहा था, जब सारी रियासतों को एक बनाना था, तो 562 रियासतें थी और उन 562 रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल की थी। सिर्फ जम्मू कश्मीर के मामले में जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि मैं इसको हैंडल करूंगा। तो सारे देश की रियासतें बनी और भारत एक बना। जम्मू कश्मीर में क्योंकि वो कश्मीरी थे और जवाहरलाल नेहरू वहां के राजा से उनको बड़ा नफरत सी थी, तो हरि सिंह के दुश्मनी में उन्होंने शेख अब्दुल्ला जैसे एक घटिया आदमी को खड़ा किया और शेख अब्दुल्ला ने उनको ब्लैकमेल किया। तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत में मिलेगा, हमें बड़ी सारी रियायतें दीजिए। तो भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री और उस वक्त के तमाम बहुत सारे लीडरों ने 370 को दिया। 370 में सिर्फ इतना ही था कि जम्मू कश्मीर में भारत की संसद लिमिटेड पावर होगी, जम्मू कश्मीर में भारत की सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेड पावर होगी। लेकिन 14 मई 1954 को राष्ट्रपति से एक आदेश दिलवाया और उस आदेश को भारत के संविधान में जोड़ा, जिसको आज पूरा देश आर्टिकल 35A के नाम से जानता है। और यह आर्टिकल 35A स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए बना था। अब आपने 50 में कुछ मांगे मानी और 54 में तो आपने ऐसी मांगे मानी कि जिससे ऐसा लगता था कि भारत की धरती के ऊपर जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है, एक अलग देश है। यह आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर की सरकार को इस बात की इजाजत देता है कि वो जिसको दिल चाहे नागरिकता दें, जिसको दिल चाहे ना दें। यानी ही आप भारत के नागरिक हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 368 के तहत यह कहा गया है कि भारत की धरती पे कहीं भी आप पैदा हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, आपका रंग क्या हो, भाषा क्या हो, अगर किसी धरती पे भी, किसी धरती के किसी कोने में पैदा हुई हैं भारत में, तो आप पूरे देश में घूम सकती हैं, रह सकती हैं, बस सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, शादी कर सकती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में आप नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 368 का उल्लंघन करते हुए कश्मीर के मुसलमानों को, कश्मीर की जिहादी, कश्मीर की सेपरेटिस्ट लोगों को अपीज करने के लिए आपने आर्टिकल 35A दिया। उस 35A ने क्या किया कि उसके साथ साथ उसमें यह प्रावधान था कि भारत का कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में न जमीन खरीद सकता है, न वहां बस सकता है, न कारोबार कर सकता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से जब मारकाट हो रही थी तो 5600 परिवार आए थे बिटवीन 1944 टू 56। उन लोगों में 100% हिंदू थे, डोगरा थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे। उन लोगों को भी पिछले 70 साल से नागरिकता नहीं दी। वो जम्मू की सड़कों पर रह रहे थे। आज उनकी गिनती 7.5 लाख है और वो लोग जम्मू कश्मीर में वोट नहीं दे सकते थे, विधानसभा में वोट नहीं दे सकते थे, उनके बच्चे जम्मू कश्मीर की शिक्षा नहीं ले सकते थे। तो इस तरीके के प्रावधानों को आपने 35A में दिया और उस प्रावधान की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और बढ़ा और उनको लगा कि हम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, यहां हमारे अलावा कोई नहीं होगा। तो एक ही मुस्लिम स्टेट जो भारत में थी, जहां मुसलमानों की गिनती सबसे मेजॉरिटी में थी, उन लोगों ने उस संविधान में, उस विधानसभा में ऐसी चीजें पास की जो एंटी इंडिया भी थी और एंटी हिंदू भी थी। लेकिन दिल्ली की सरकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पे और अपनी सत्ता बचाने के लिए मुसलमानों की पूरे देश में और खासतौर से जम्मू कश्मीर में नाजायज मांगों को माना और एक पैरेलल
इनविजिबल सत्ता क्रिएट हो गई इस देश के अंदर। लिहाजा जब भी बात आप संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहेंगे, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, उसको मत करो। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होगी, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये जो आपने पैम्परिंग की, उनकी गलत मांगों को मान के आज देश उस मुहाने पे खड़ा है कि देश के हित में क्या है, ये सोचने से पहले ये सोचा जाएगा कि मुसलमान के हित में क्या है। अगर उसके हित में है तो ठीक है, उसके हित में नहीं हो तो देश की पॉलिसी बदल जाएगी। तो संविधान में भी आप क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कर देंगे, आप कानून में भी अमेंडमेंट कर देंगे। अगर ये देश सेकुलर है तो फिर भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? अगर ये देश सेकुलर है तो भारत में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? अगर ये देश सेकुलर है तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज क्यों है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करता था, भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देता था, भारत के खिलाफ वहां के सेपरेटिस्ट को बढ़ावा देता था, पाकिस्तान की। और उस आर्टिकल 35 में कमाल की चीज थी कि जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की, हिंदू या मुसलमान, वो भारत के किसी भी लड़के से शादी करे, हिंदू या मुसलमान से, जैसे ही जम्मू कश्मीर की नागरिक जो लड़की है वो शादी करेगी हिंदुस्तान के किसी राज्य के लड़के से, उसके प्रॉपर्टी राइट छिन जाएंगे। लेकिन वही जम्मू कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करे तो उस लड़के को भी नागरिकता मिल जाएगी। अब आप इसे कहेंगे कि यह सेकुलरिज्म है, यह कश्मीरियत है। तो इसको हटाना था। हम लोगों ने मुहिम चलाई और 4 साल के अंदर देश में दबाव बना, सरकार को समझ में आया, देश को। इसलिए मैंने कहा कि देखिए सोशल मीडिया का दबाव क्या हुआ, हमारे पास तो कोई अपना चैनल नहीं था। इसी बात को लोगों को बताया हमने, जो बात हजारों साल से नेताओं ने नहीं बनाई, जो कश्मीर ने नहीं बताई, जो सेकुलर पाखंडियों ने नहीं बताई। अब पता चल गया, लोगों का दबाव बना, सरकार मजबूर हो गई हटाने पे। तो आज अगर सही मानों में कहें कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो इसलिए है कि आज दिल्ली की सरकार जो है, जैसे पूरे देश की जमीन के ऊपर उसका कब्जा है कि भारत के बगैर चाहे कोई राज्य अपनी जमीन किसी देश को नहीं दे सकता। भारत का कहीं से भी दुनिया से आकर के आदमी किसी राज्य में बस जाएगा तो राज्य को नागरिकता देने का अधिकार नहीं है, नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो आज जम्मू कश्मीर की पूरी जमीन, आज जम्मू कश्मीर की पूरी सरकार केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। अब वहां जिहादी भी कम हो रहे हैं। और जो पूरे देश के अंदर आप बम धमाके देखते थे, कोयंबटूर में हो रहा है, बनारस में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, मथुरा में ये जो बम धमाके थे, ये किस लिए हो रहे थे? ये जो जिहाद चल रहा था पाकिस्तान से, ये पूरे देश को खा रहा था। अब मुझे बताइए, पिछले 5 साल से आपने कोई सुना कि भारत के अंदर कहीं बम धमाका हुआ? जो बम धमाका करने आ रहे थे उनका इलाज जम्मू कश्मीर में ही हो गया है। वहां की सरकार जो इस आतंकवाद में लिप्त थी, वहां के जो ब्यूरोक्रेसी उसमें लिप्त थी, उन तमाम सारे लोगों को कर्टेल कर दिया गया। तो आज अगर कहें तो सच मानने में जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग हुआ है, इससे पहले नहीं था। ये झूठ था, पाखंड था, हर नेता यही बोलता था, लेकिन भारत का अंग नहीं था। भारत का अंग होता तो फिर तिरंगे के ऊपर वहां पे झगड़ा क्यों होता, फिर तिरंगा क्यों नहीं फहरता था? जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने वालों को मारा जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ISIS इस्लामिक स्टेट का काला झंडा फहराने वालों को नवाजा जाता था कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम किया है। तो आप कहेंगे ये भारत विरोधी नहीं था? जम्मू कश्मीर का पूरा मुस्लिम सिस्टम, जम्मू कश्मीर की पूरी जिहाद की फैक्ट्री, सारा सेपरेटिज्म और ये महबूबा अब्दुल्ला, दे आर पार्ट ऑफ द आतंकवाद, दे आर पॉलिटिकल आतंकवादी। होल प्रोफेसर, वाइस चांसलर जो उस जम्मू में थे, दे आर ऑल इंटेलेक्चुअल आतंकवादी। इन सब का एक नेक्सस था। उस नेक्सस को आप तोड़ेंगे तो 70 साल की जिनकी सत्ता जाएगी वो फिर शाहीन बाग के बाद बाहर बैठेंगे। तो कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज होना चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इसका देश इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। और जो राष्ट्र के साथ खड़ा होगा वही भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। जो भारत के खिलाफ होगा, अगर उनको गोली भी मारने की जरूरत पड़े तो गोली भी मारनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को बचाना है, कोई इंडिविजुअल्स को नहीं बचाना है। और अगर किसी ने तय कर लिया है कि हम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उनको मैं बार बार कहता हूं, ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। अगर भारत के टुकड़े करने की जो बात कहेगा, उसका भारत के लोग उसके टुकड़े कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। सर, व्हाट इज 30A? 30A भारत के संविधान में एक ऐसी धारा है, ये धारा ये कहती है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता,
अपने कॉलेज में नहीं दे सकता, प्राइवेट कॉलेज में नहीं दे सकता, इसके लिए कॉलेज नहीं बना सकता, और जो सरकार के जो कॉलेजेस हैं उसमें नहीं दी जा सकती। लेकिन एक धारा है 30, वो 30 धारा मुसलमानों को इस बात की इजाजत देती है कि वो अपनी मजहब की शिक्षा के लिए कॉलेज खोल सकते हैं, वो मदरसे चला सकते हैं, क्रिश्चियन अपने मदरसे चला सकते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं जहां वो अपने मजहब की शिक्षा दे सकते हैं। मेरा सवाल यह है, क्या संविधान के निर्माताओं को इस बात का बोध नहीं था कि सिम्मी जी, अगर आप अपने धर्म की शिक्षा आपको नहीं मिलेगी तो आप में संस्कार कहां से आएंगे, आप में फेथ कहां से आएगा, आप वेद क्या हैं, पुराण क्या है, कैसे जानेंगे अगर आपसे कहा जाए आपको यह नहीं पढ़ना है। और भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके 5000 साल का जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें भारत का कोई भी आप दौर देख लें, कभी भारत की सनातन संस्कृति के मानने वालों ने दुनिया के किसी देश पे हमला नहीं किया। यह शब्द बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। यह घूंघट इसलिए नहीं था कि हमारे यहां था, हमको गलत नैरेटिव दिया क्या। ये भारत के अंदर जब मुगल शासक आए, उनका एक ही एजेंडा था कि जितने गैर मुस्लिम औरतें हैं उनका रेप करके उनकी नस्लों को सुधारना है। ये बलात्कार शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था, ये तलाक शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था। हमारी परंपरा और संस्कृति में 7 फेरे जीवन भर के लिए जाते हैं। इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल, इट्स ए बिजनेस। आपने शादी मुझसे की और शादी करने के कुछ दिन के बाद आपको लगा कि मैं रहना नहीं चाहती, तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो आर्टिकल 30A भारत के संविधान से हटना चाहिए। इस देश के 90 से 95 करोड़ हिंदुओं को उनका शास्त्र क्या कहता है, उनका वेद क्या कहता है, इसकी शिक्षा की इजाजत देनी चाहिए। और मंदिरों के ऊपर जो हिंदू पैसा चढ़ाते हैं, यह भी एक लॉ है जो नहीं पता देश को। भारत के जितने भी मंदिर हैं उस पे जो पैसा चढ़ता है वो सरकार के खजाने में चला जाता है। और भारत के मजारों के ऊपर जो पैसा चढ़ता है, जो गुरुद्वारों में पैसा चढ़ता है, वो सारा का सारा पैसा उस धर्म के मानने वालों के पास चला जाता है। सिर्फ भारत के हिंदुओं का पैसा जो आप अयप्पा पे चढ़ाती हैं, जो महाकाल पे चढ़ाती हैं, जो वैष्णो देवी पे चढ़ाती हैं, वो पैसा सरकार ले लेती है। तो अगर भारत के मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे से भारत के लोग, हिंदू लोग, सनातनी लोग अपने विश्वविद्यालय खोलना चाहें कि हम सनातन के बारे में बताएंगे, पुराणों को पढ़ाएंगे, तो उसकी भी छूट नहीं है। ये संविधान में 2 धाराएं एंटी हिंदू हैं, इनको समाप्त होना चाहिए। और मैंने कल भी घोषणा की है कि अगले 2 साल में इसके खिलाफ भी मैं। सर, आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी 2 दिन पहले मैंने ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए एक रूल के बारे में पढ़ा, जिसके तहत वो महाभारत और रामायण वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है ना, उनका सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आएगा ना। ये पाखंड भारत में हुआ है और भारत के नेताओं ने किया है और भारत के हिंदू स्कॉलर्स ने किया है। ये लालच और प्रोपेगेंडा और सत्ता की लालसा में बहुत सारे हिंदुओं ने गलत काम किए हैं। आज ये देश उनके कामों की वजह से भुगत रहा है। आपको सत्ता चाहिए थी, सत्ता पे जाते, लेकिन आपने सारा काम एंटी हिंदू, इस देश में जितना एंटी हिंदू काम हुआ है वो किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि किसी हिंदू की नाजायज मांग मांगो। आज भी ये देश मेजॉरिटी में है, हिंदू मेजॉरिटी में। आज भी उस मेजॉरिटी देश में होने के बाद 150 साल के बाद आपने राम मंदिर के फैसले के लिए कोर्ट का इंतजार किया, और कोर्ट अगर फैसला दूसरी तरफ देती तो भी देश मानता। हम तो इतनी मेजॉरिटी में होने के बाद हमने बामियान की तरह मूर्ति नहीं गिराई। हमने जब पाकिस्तान के अंदर 23.5% माइनॉरिटी थी, आज 1.5% रह गई। हमारे देश में माइनॉरिटी 3.5 करोड़ थी, आज 33 करोड़ है। हमारे देश में माइनॉरिटी का आदमी राष्ट्रपति भी बनता है, 4 राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बनाए, हॉकी का कप्तान बनाए, क्रिकेट का कप्तान बनाए। कौन सा ऐसा जगह है जहां नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश की मिसाइल बनाई है। हमारे यहां बिस्मिल्लाह खां भी पैदा हुए हैं। लेकिन भारत के समाज में को यह समझना चाहिए कि हिंदुओं की सोबत और हिंदुओं की संस्कृति में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं, और कुरान पढ़ के, जिहाद पढ़ के जो पैदा होते हैं, या तो वो अफजल गुरु बनते हैं या याकूब मेनन बनते हैं।
मुसलमानों को तय करना है कि वो याकूब मेनन के जनाजे में जाएंगे या एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में जाएंगे। दोनों की एक ही दिन मौत हुई। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में 50 मुसलमान नहीं गए, लेकिन याकूब मेनन जो 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, जिसमें 300 हिंदू मारे गए थे, उसमें 5 लाख मुसलमान गए। तो साफ है कि आप किधर जाना चाहते हैं। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे इस टॉपिक से डिफरेंट है। थाईलैंड में जो टूरिज्म है उसमें 70% हाथ इंडियंस का है। आश्चर्यजनक बात यह है कि लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि अगर इंडियंस को बोला जाए कि आपको 50,000 रुपीज़ देते हैं और आप जाइए घूम के आइए, तो वो अपने ही कंट्री के दूसरे स्टेट में ना जाके दूसरे कंट्री में जाना चाहता है। ऐसा क्यों? अगर मैं बोलूँ कि मेरी ही फैमिली है या मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी हो और हमने प्लान किया कि चलो ट्रिप पे जाते हैं, तो मेरे फादर इज़ अ वेरी इंडियन टाइप ऑफ पर्सन जो इंडिया में घूमना पसंद करेंगे, लेकिन अगर घर के दूसरे हिस्सों की बात करें तो बड़े हों, बुजुर्ग हों, वो घर इंडिया के ही जयपुर में, इंडिया के केरला में, इंडिया के तमिलनाडु में ना जाके थाईलैंड जाना पसंद करेंगे, सिंगापुर जाना पसंद करेंगे, मॉरिशस जाएंगे। वह बजट वही है, लेकिन वो खुद ही की कंट्री में ना जाने से पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं। इसकी एक वजह यह है कि आज़ादी तो आपको मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन कॉन्स्टेंटली भारतीय समाज के अंदर अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को लेकर के एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया गया, और कॉलोनियल रूल की वजह से जो आपने भारत की छवि बनाई है, हम अपने ही लोगों को डिग्रेड करने में शान समझते हैं। अपनी ही चीज के बारे में थोड़ा सा अच्छा कोई कह देगा, तो अगर यही दुनिया के लोग ये कहने लगे कि जयपुर बहुत खूबसूरत जगह है, दुनिया में ऐसी नहीं है, तो हम हिंदुस्तानी होते हुए जो हमारे पीछे है घर के, तब लगेगा अच्छा ऐसा था। तो हम ये मानते हैं कि कुछ दुनिया में कुछ लोग बताएंगे कि क्या अच्छा है, वही अच्छा लगेगा। तो एक हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। कहीं हमारे अंदर अपने ही चीजों के प्रति वो उस किस्म का भाव नहीं है जो होना चाहिए। तो हम तमाम सब लोग यही कहते हैं, अच्छा हम जयपुर क्या करना है यार, वहां जाकर रेगिस्तान में, हमें ऐसा लगता है, लेकिन सहारा डेजर्ट में जाएंगे तो हमारी एक लंबे समय तक की गुलामी, 1000 साल की गुलामी के कारण हमारे अंदर एक ऐसी हीन भावना हो गई है कि हम कभी कभी अपने ऊपर प्राउड नहीं करते क्या हमने ये अचीव किया है। हमने क्या अचीव किया, जब कोई दूसरा कहता है तब अच्छा हम ऐसे हैं, तो वो सेंस ऑफ जिसे कह सकते हैं प्राइड हमारे अंदर नहीं रहा है। हम इतने, और क्योंकि सक्सेसिव सरकारें आई, उन्होंने उन चीजों को नहीं प्रमोट किया, तो हमें हमारी हर चीज बुरी लगती है, हमारे अपने आदर्श हमें बुरे लगते हैं। लेकिन वही आदर्श जब आप इंग्लैंड में चले जाते हैं, वही जब आप अमेरिका में चले जाते हैं, तो जब वहां पे पूजा करते हैं तो वहां एक अलग एटीट्यूड होता है, भारत के मंदिरों में जाते वक्त आपका एक अलग एटीट्यूड होता है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स से लेकर के समाज में ज्यादातर जगह कभी आपको प्राउड नहीं क्रिएट किया कि भाई आप कौन हैं। आपको भी इस बात का प्राउड होना चाहिए कि हम दुनिया में ऐसे हैं, हमारे यहाँ 3 वेदर हैं, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ समुद्र भी है। तो क्या ये चीज़ कहना सही होगा कि कहीं ना कहीं क्योंकि हमें अपने आप को लेके इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है, तो दूसरे रिलीजन हम पे आसानी से हावी होते हैं। That's right. मैंने वही कहा कि आप जो जिस संस्कृति के अंदर शास्त्रार्थ का वजूद हो, क्या आप तर्क पे बात करिए, दुनिया की हर चीज पे बात करिए, राम पे करिए, सीता पे करिए, आसमान पे करिए, जिस पे दिल चाहे करिए। जो भी तर्कों से बात अपनी रखेगा, जिसकी बात सही होगी मान ली जाएगी। आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, इससे मतलब नहीं था। लेकिन वो लोग आज तर्क पे बात नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पे करते हैं, अंधविश्वास को करते हैं। इसीलिए सनातन को लोगों ने छोड़ा, और आज जो आप हिंदुत्व के नाम पे बहुत सारी चीजें, ये पाखंड है, ये हिंदुत्व नहीं है। भगवान की पूजा करने से भगवान प्रकट होंगे और आपकी सारी तबीयत ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो एक स्पिरिचुअल ताकत होती है। हमने पाखंड को ही अपना सनातन समझा हुआ है, और हम हमेशा ये लगते हैं कि दूसरे को खुश करना है, क्योंकि हम 1000 साल तक गुलाम रहे, कहीं दूसरा हमसे नाराज ना हो जाए। गलत बात पे भी अगर हमको उसको खुश करना है तो हम खुश करने में लगे रहते हैं। उस खुश करने में हमें लगता है कि हम जो कुछ हैं, हमारे कोई अस्तित्व नहीं है, सारा अस्तित्व दूसरे का है। तो हमने अपने आप को भौतिक से जोड़ दिया है, इसलिए हमारे अंदर की ताकत कमजोर हुई है। मैंने वही कहा कि इस लंबे सफर में अब भारत के अंदर
लोगों के अंदर से वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे कम हो रहा है। और जैसे जैसे ये इन्फिनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कम होगा तो जिन लोगों ने आपके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भरा है उनकी गिनती कम हो रही है। अब आप अपनी हर बात को ताकत के साथ कहते हैं, और जब आप ताकत के साथ कहते हैं, जब भारत का प्रधानमंत्री अपनी संस्कृति पे, अपने कस्टम पे, अपने रिचुअल्स पे, अपनी पहचान पे जब प्राउड फील करने लगता है, तो अमेरिका में टाइम नहीं लेना पड़ता कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए टाइम चाहिए, राष्ट्रपति बाहर खड़ा होता है। चीजें ऐसे बदल जाती हैं। आज दुनिया भारत की तरफ इसलिए देख रही है कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चरल पावर है, वो पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। लोग मान रहे हैं कि ये जो भौतिकवाद है, करोड़ों रुपया कमाना और फिर उसके बाद टेंशन में चले जाना, भारत की संस्कृति सनातन का मतलब ही शांति है, वो इनर पीस है, जिस इनर पीस के लिए लोग जाने कहां जा रहे हैं। हमारा तो इस धरती पे हमारा पास्ट, हमारी पूरी सभ्यता उसी से आई है। हम तो ऋषि मुनि वाले लोग हैं। हमारे यहाँ इस बात से कभी तय करा गया किसके पास कितनी गाड़ी है। आज भी भारत में बड़े बड़े बिरला, टाटा और अंबानी हो जाए, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जो है गरीब ही बनता है। देश आज भी उस गरीब के ऊपर यकीन करता है। अगर ये होता तो बिरला इस देश के प्रधानमंत्री होते, अंबानी इस देश के प्रधानमंत्री होते। पैसे के वाले को आज भी हमारे यहाँ देश नहीं पूछता है। अगर सच बात कहने वाले के आज के चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री रहे, 11वीं क्लास तक उनके पास चप्पल पहनने के पैसे नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री के पास कोट पहनने के पैसे नहीं थे। जब वो भारत ताशकंद आ रहे थे तो नेहरू जी ने अपना कोट उनको दिया था। इस देश में आदर्श हमेशा ऐसे लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस देश की उसी खोई हुई ताकत को जगाने में हम लोग लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि देश धीरे धीरे उस बात को समझ रहा है। और कहते हैं ना कि कभी कभी आप पूरा राउंड लेके आते हैं तब आपको समझ में आता है। आप सब जगह घूम के आते हैं, कहते हैं नहीं यार सब जगह घुमाया लेकिन यही ठीक है, तो वो सर्किल पूरा हो गया है। सर, एंड में हमारे इंडियंस जो थाईलैंड में हैं उनके लिए एक कोई मैसेज? मैं उनसे यही कहूंगा, ऑल आर वेरी गुड पीपल, लेकिन भारत से जो कमियों के साथ आए थे उन कमियों को समाप्त करें। ये यूपी का है, ये गुजरात का है, ये ब्राह्मण समाज है, ये ठाकुर समाज है, ये गुजराती समाज है, ये महाराष्ट्रीयन समाज है। आप अगर यहां आने के बावजूद भी इलाके के नाम पे, भाषा के नाम पे अगर आप ये कर रहे हैं तो आपने इस दुनिया से नहीं कुछ सीखा। आप यहां आकर के सिर्फ एक ही पहचान है कि आप भारतीय हैं। और तमाम सारे लोग, वो सब लोगों को शामिल होना चाहिए, वो तमाम सारे लोगों को वही सब सोचना चाहिए। निजी हितों को सोचें, पर्सनल इंटरेस्ट को सोचें, लेकिन अब जब जाएं तो ये नहीं होना चाहिए कि ये इधर से आए हैं, ये इधर से आए हैं। तो जब आप कोई काम करें तो उसमें आप भारत झलकना चाहिए, उसमें कौन क्या है कौन क्या नहीं है ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर जगह मैं ये सुनता हूं। मेरा मानना है कि आप भारत के एम्बेसडर हैं, आपने इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, इस देश को बनाने में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। आप ऐसे ही नहीं आए हैं कि सिर्फ यहां आ गए हैं और इस देश का सिर्फ ले रहे हैं और इसको दे नहीं रहे हैं। अपनी उस शक्ति का प्रदर्शन करिए ताकि यहाँ की सरकारें आपका सम्मान करें, आपके देश का सम्मान करें। ये आप उस प्रथा के लोग नहीं हैं कि इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, ऑस्ट्रेलिया गए और सड़कों के ऊपर आप आग लगा रहे हैं, मार काट कर रहे हैं। कोई कहता है हमें यहाँ मस्जिद चाहिए, कोई कहता है हमें यहाँ शरिया चाहिए, कोई कहता है हमें यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। आप यहाँ के संविधान, यहाँ के बनाए कानून के तहत यहाँ रहते हैं, उसका पालन करते हैं। उसके साथ साथ इस देश की ग्रोथ में भी आपका एक रोल है, उस ग्रोथ के साथ आप भी होते हैं। मेरा उन सब से कहना है, आप कुछ भी हो लेकिन आप बैंकॉक के और इस थाईलैंड के किसी कोने में हो, भारत से आगे कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं उस पर डिस्कस होना चाहिए। आप भारतीय हैं, बस यही चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए। आपका रंग क्या है, इलाका क्या है, इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। लिहाजा बहुत अच्छा समाज है, इतने सारे लोग हैं, कुछ गोरखपुर से मिले, कोई यूपी से मिला है, कोई मुझे गांधीनगर से यहाँ मिला, कुछ सूरत के यहाँ मिले, लेकिन सबसे मिलने के बाद मुझे सब में एक ही बात लगता था कि सब भारत के लिए बहुत चिंतित हैं और भारत के लिए चिंतित हैं। मेरे लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भारत के लिए चिंतित होंगे तो भारत मजबूत होगा। आपने इतना समय दिया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। थाईलैंड के देश के लोगों को मेरा धन्यवाद, यहाँ की सरकार को, यहाँ के मिनिस्टर्स को, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। इतना खूबसूरत शहर उन्होंने बनाया है, इतनी खूबसूरत लोग हैं, इतना साफ सुथरा शहर है।
मैं उन तमाम सारे लोगों को जो भारत से यहाँ आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बात कहने का मौका दिया, मेरी बात लोगों तक जाए, लोग इसको समझें। अगर उसमें उनको कोई तर्क नहीं लगता है, अगर कुछ उनको कोई गलत बात लगती है, वो खुले रूप में मुझे बताएं, आपको बताएं। मैं फिर दोबारा कभी आऊंगा या हिंदुस्तान में रह के आपकी उस बात को करेक्ट जरूर करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के बारे में, सनातन के बारे में, 5000 साल पुरानी सभ्यता के बारे में देश के लोग जाने, दुनिया के लोग जाने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।